Good evening, guys. Welcome back in another interesting lecture on why do we fall ill class ninth. In the last lecture, we have discussed what are diseases and how we can remain healthy, what are the different types of diseases. So today we will take the rest of the topics from the same unit, that is why do we fall ill. So in the last lecture, we have seen that one type of disease is the infectious diseases, the diseases which can transmit from one person to the another person. How these diseases develop in our body, what are the agents which develop these diseases in our body, वो कौन से एजेंट्स होते हैं, वो कौन से पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ये डिजीजेस डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. So that means the organisms which cause the infectious diseases, you can call these organisms as pathogens also, or simply you can call them as infectious agents. ठीक है. These infectious agents which cause diseases in our body, they can be viruses. ठीक है. तो आज तो आपको पता ही है कि कोरोना वायरस ने हमें घेर के रखा है. बैक्टीरिया हो सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस डेवलप हो जाते हैं. फंजे हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं. ठीक है. जैसे कि प्लाज्मोडियम है, वर्म्स हो सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में रिंग वर्म की वो डिजीज हो जाती है, सेकंड डिजीज. ठीक है. तो these are the different agents which cause various infectious diseases in our body. First is the virus, second is the bacteria, third is the fungi, fourth is the protozoans, and the fifth is the worms according to a textbook. ठीक है. Let us see first of all what are the diseases which are caused by viruses in our body. The common disease, that is the common cold. जुकाम सबको होता है. It is because of the virus and it is easily transmitted from person to the person. ठीक. Influenza, another important disease that is caused by a virus. Measles, ठीक है. रेड पैच निकल जाते हैं बॉडी पे, उसकी वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से. मम्पस, गाल मोटे हो जाते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ द मम्पस वायरस. चिकन पॉक्स, बॉडी पे रैशेस निकल जाते हैं, ठीक, बिकॉज ऑफ द वायरस. एड्स, मोस्ट डेडफुल डिजीज, it's because of the virus, HIV virus. And hepatitis B, again it is because of the virus. So these are the diseases which are caused by viruses in our body. ठीक. Next important agent is the bacteria. What are the diseases which are caused by bacteria? Cholera, it is because of the bacteria. Typhoid, it is because of bacteria. Tuberculosis, ठीक है, जैसे कि lung tuberculosis, because of bacteria. Tetanus, because of bacteria. Anthrax and food poisoning. फूड पॉइजनिंग भी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है. जैसे ही ये बॉडी हमारी बॉडी में आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग डिजीज इन आवर बॉडी. नेक्स्ट इज द फंजाई. फंजाई से हमारी बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में निकल जाते हैं, वो बिकॉज ऑफ बहुत ये फंजाई के बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उनकी वजह से हमारी बॉडी में स्किन डिजीजेस डेवलप हो जाती है. जैसे प्रोटोजोन्स है, मलेरिया, मलेरिया हमारी बॉडी में डेवलप हो, जैसे कि प्लाज्मोडियम होता है, उसकी वजह से डेवलप होता है. कालाजार, एम्यूबिक डिसेंट्री, डायरिया, कंटिन्यूस स्लीपिंग सिकनेस, दीज आर द डिजीजेस व्हिच आर caused by the protozoans. That means the animals which belong to belong to group protozoa. ठीक है. नेक्स्ट इज द वर्म्स. जैसे कि बहुत सारे वर्म्स होते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में, या क्या नाम है इसका, वोशेरिया बेनिक्राफ्टिया होता है, जिससे एलिफेंटियोसिस होता है. ठीक है. सो दीज वर्म्स आल्सो कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन आवर बॉडी, जस्ट लाइक आई हैव रिटन द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, एलिफेंटियोसिस. एलिफेंटियोसिस में आपने देखा होगा टांगे बड़ी हो जाती है, बाजू बड़े हो जाते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड, बिकॉज these worms reside in our lymph nodes. That is why there occurs the swelling of the different parts of the body. So these are the different agents which cause various diseases in our body, as we have discussed. Next important thing is what are the means of spreading these disease. अब एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है डिजीज. ठीक है. The infectious जो डिजीज होते हैं, ये स्प्रेड, दे इजीली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन. it these diseases can be transmitted through the medium, can be air, it can be water, it can be through food, it can be through vectors, it can be through physical contact with the infected person, it can be doing sexual intercourse with the infected persons. ठीक है. These are the various ways of spreading the infectious disease. For example, कोई infected person है, उसने छींका, आयर में उसकी छींक आ गई, ठीक है, उसके ड्रॉपलेट्स रह गए, तो वो दूसरे पे ट्रांसमिट हो जाएंगे. वाटर, आपने कंटेमिनेटेड वाटर पिया,
ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरिया है, उसमें कुछ मतलब खराब चीजें थी, उसकी वजह से आपकी बॉडी में डिजीज डेवलप हो सकती है। फूड, जिसपे फूड पॉइजनिंग हुई, जिसमें मतलब कोई बैक्टीरिया आके उसने अंडे दिए वहां पर, तो उसकी वजह जब हम वो फूड खाएंगे तो उसमें से उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेक्टर्स, वेक्टर्स मीन्स कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, पहले वो किसी ऑर्गेनिज्म में आता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम आता है जिसकी वजह से मलेरिया आता है या डेंगू आता है, फिर वो हमें बाइट करता है, बाइट के थ्रू वो इस एजेंट को, इस इन्फेक्शियस एजेंट को हमारी बॉडी में डालता है, तभी हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है हमारे, उसको हम कहते हैं वेक्टर, जो बीच वाला जो ट्रांसमिट करता है, बीच में जो आता है। जो physical contact, if you are making any physical contact with a person who is having common cold, so you will easily get that disease. Next is the sexual intercourse. If for example a person is suffering from AIDS, if a person is having AIDS, this is the most dreadful disease. If you make a sexual intercourse with that person, it will easily get transmitted in your body also. ठीक है, these are the various means of transmitting the disease. For example, अगर हम कुछ examples लेंगे यहाँ पर air के through, common cold मैंने अभी कहा, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है, जैसे आप छींकते हो तो आपकी थूक में वो रहता है, तो कहीं पे वो दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन को लग गया तो उसको भी डेवलप हो सकता है डिजीज। नेक्स्ट वाटर, वाटर में कंटेमिनेशन होगी, कॉलरा, डायरिया आमतौर पर किसकी वजह से होता है, या तो वाटर की वजह से, ये कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज खाते हो आप जिससे डायरिया फिर कंटिन्यूअसली होता है, या लूज मोशन भी आप कहते हो इसको, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट है वेक्टर्स, वेक्टर्स मीन्स मैंने अभी कहा कि मॉस्किटो है, मॉस्किटो में आ जाता है मलेरियल पैरासाइट, इसकी बॉडी में बैठे, फिर ये हमें बाइट करता है, बाइट के थ्रू उसको हमारी बॉडी में डाल देता है, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट्स में कंप्लीट होता है, एक होस्ट हम होता है और एक होस्ट मॉस्किटो होता है। जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, इनकी वजह से जो फीवर आता है फिर, ठीक है, और फ्लाइज, बहुत सारे और भी इंसेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं, ये जैसे टाइफाइड है, डायरिया है, तो ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। कोई एजेंट दूसरा होता है लेकिन पहले एक की बॉडी में आता है, फिर वो बाइट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो फिर उसकी बॉडी में वो ट्रांसमिट हो जाता है, डायरेक्टली वो एजेंट हमारी बॉडी में नहीं आता है। नेक्स्ट इज द थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, like STDs are there, sexually transmitted, like syphilis है, AIDS है, ठीक है, ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, अभी मैंने कहा कि if you make a sexual intercourse or sexual contact with an infected person, it will easily get transmitted to your bodies also. But this AIDS virus can also be spread. For example, if there is a person who is having AIDS, जिसको AIDS है, if he will donate blood to some other uninfected person, अगर वो डोनेट करेगा ब्लड किसी uninfected person को, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी बॉडी में एड्स चला जाएगा, ठीक है, या कोई मदर है जिसको एड्स है या कोई और ड्रेडफुल डिजीज है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान उसके बच्चे में भी जा सकते हैं। दीज आर द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नेक्स्ट इज द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। फॉर एग्जांपल, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, वो पहले एक ऑर्गन में आते हैं फिर दूसरे ऑर्गन में चले जाते हैं हमारी पर। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। फॉर एग्जांपल, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू नोज, जो माइक्रोब्स हमारी नोज के थ्रू आएंगे, थ्रू एयर, वो किस में जाएंगे, विंड पाइप में, और विंड पाइप के नीचे क्या है फिर लंग्स, इसलिए वो लंग्स को डैमेज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, जो माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू माउथ, जो हमारे माउथ में जाएंगे या फूड में जाएंगे, फूड कहाँ डायरेक्टली जाएगा, हमारे गट में, तो वो किस में, या तो गट में जाएंगे, पूरी गट ये इसमें वहां पर प्रॉब्लम डेवलप करेंगे, या लिवर में जाएंगे, जैसे कि वहां पर प्रॉब्लम डेवलप, जैसे कि जॉइंटिस होता है, या अगर गट में प्रॉब्लम होगी तो टाइफाइड होता है, ठीक है। या viruses which cause AIDS enter the body through sexual organs during sexual contact and spread through the, फिर किसमें, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हो गया, वो वायरस उसकी बॉडी में आ जाता है, बॉडी में आने के बाद वो उसके लिम्फ में चला जाता है, लिम्फ इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जस्ट लाइक देयर इज ब्लड बट इट इज नॉट, इट इज कलरलेस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इसमें ये चला जाएगा, इट लिम्फ इसको किस में लेके जाता है, सारी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, इम्यून सिस्टम तक भी लेके जाता है।
ठीक है। और ये जो एड्स वायरस होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा इट्स अ प्रोटेक्शन, इट गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज, इट गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। तो ये एड्स जो वायरस है ये इम्यून सिस्टम को ही खत्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वायरसेस विच काज फॉर एग्जांपल जापानीज एंसेफेलाइटिस या ब्रेन की एक डिजीज है, वो भी मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही होता है, एंड उसके फिर किस बॉडी पार्ट को, ब्रेन को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो डिफरेंट रूट्स ऑफ गेटिंग इनसाइड आवर बॉडी, जब वो एक बॉडी पार्ट पे जा वो डिफरेंट ऑर्गन्स में इजीली मूव कर सकते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, अब अगर किसी एक इंडिविजुअल को कोई डिजीज हो गया, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल, व्हाट शुड बी द मतलब कोर्स ऑफ एक्शन टू मतलब प्रोटेक्ट दैट पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज, और टू उसको थोड़ा सा मतलब हेल्प करने के लिए किस तरह से उसको आप डिजीज से बचा सकते हैं, क्या मतलब तरीकाकार होना चाहिए उसको बचाने के लिए। द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज, उसके दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी डिजीज हो गई, सबसे पहले आप ये नहीं देखोगे कि उसको क्या उसको किसकी वजह से, सबसे पहले आप उसको जो सिम्टम्स हैं उनको कोशिश कम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल की बॉडी में कंटिन्यूअस फीवर है, फीवर से उसकी बॉडी में और प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आप उन सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करोगे। सेकंड, जब उसमें थोड़ा सा सिम्टम्स कम हो जाएंगे, देन यू विल स्टार्ट किलिंग द माइक्रोब्स, उसके लिए फिर मेडिसिन दोगे, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल शुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज। जो भी डिजीज किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप हो गई है, सबसे पहले हमें उसके इफेक्ट्स को रिड्यूस करना है या उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई भी डिजीज है, उसको फीवर है, ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस होता है, किसी को कंटिन्यूअस फीवर आ जाता है उसको, तो सबसे पहले फीवर कम करने की कोशिश करेंगे हम, क्यों, कैसे करेंगे, उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, या पेन होगी किसी को उसको पेन किलर देंगे, या लूज मोशन होगी उसको, क्योंकि अगर उसको कंटिन्यूअसली वाटर लो उसको कंप्लीट डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए सबसे पहले इन सिम्टम्स को कोशिश करने के लिए कुछ मेडिसिन उसको देंगे, ठीक है। उसको रेस्ट देंगे उसको, ताकि उसको ज्यादा, क्योंकि वो बीमार होता है, उसको ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, टू कंजर्व हिज एनर्जी। नेक्स्ट, जब उसको थोड़े से सिम्टम्स कम हो गए, फिर हम उसको किसको मारने की कोशिश करते हैं, इन्फेक्शन एजेंट को या माइक्रोब को, जिसकी वजह से डिजीज डेवलप हुआ था। उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दीज आर अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को मारने की कोशिश करेंगे, और फाइनली इंशाल्लाह वो ठीक भी हो सकता है अगर ज्यादा ड्रगफुल डिजीज ना हो। So these are the two important principles that you have to follow while treating a person. First, to reduce the effects of the first to try to reduce the effects of the disease by giving him medicines. Second, to try to kill the microbe by giving him antibiotics. Second is principle of prevention. अब हम अपने आप को कैसे बचाए ताकि हमारी बॉडी में कोई डिजीज ही डेवलप ना हो, ठीक है। तो क्या है इसमें कुछ फॉर एग्जांपल जनरल वेज है जो सब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जनरल वेज मतलब क्या है, पब्लिक हाइजीन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। सबसे पहले आप जहां पर रहते हो, यू हैव टू कीप योर एनवायरनमेंट वेरी मच क्लीन, ठीक है। आपको प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग बैलेंस्ड डाइट। जब आपको बैलेंस्ड डाइट हो, आपकी बॉडी में बैलेंस्ड डाइट रोज जाएगा, तो आपकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगी डिजीज के खिलाफ लड़ने की, ठीक है। एंड फॉर एवरीवन देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मतलब सैनिटेशन फैसिलिटीज, पीपल हेल्दी टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस। एयरबॉर्न डिजीज कैन बी, अगर फॉर एग्जांपल कोई एयरबॉर्न डिजीज, वो किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं हम, आपको ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में नहीं मतलब रहना है। फॉर एग्जांपल आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं, ठीक है, वहां पर बहुत सारा पोल्यूशन होता है, आपको कोशिश करनी है इस एरिया में रहने की जहां पर पोल्यूशन कम हो, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉसिबल है आज के ज़माने में। वाटर बॉर्न डिजीज़ को कैसे रोकेंगे हम? सिंपल, जो भी आप वाटर लाते हो बाहर से, सबसे पहले उसको क्लीन करना है, अपने प्यूरेट में डालना है या किसी भी प्यूरीफायर में डालना है जो उसको प्यूरीफाई करे, ठीक है? उसके बाद ही पीने, या आपको उबाल के भी पी सकते हो, बॉइल्ड वाटर, ठीक है? तो उससे भी डिजीज़ेज़ होने के कम चांसेस है। नाउ सेकंड वन इज स्पेसिफिक वेज। स्पेसिफिक वेज क्या है? स्पेसिफिक वेज मतलब आपको वैक्सीनेशन करवानी है, जैसे कि करवाते हैं,
ठीक है। वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं? जैसे ही किसी बच्चों को वैक्सीन करते हैं, उस वैक्सीन में बेटा क्या होता है, उस वैक्सीन में फॉर एग्जांपल अगर किसी को हम फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन देते हैं, ठीक है? ट्यूबर या फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, रीसेंट एग्जांपल कोरोना वायरस की। अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, मत है। इसीलिए हमारी बॉडी इसके खिलाफ लड़ ही नहीं सकती, ठीक है? वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन जो होता है उसमें हम देते हैं एक इंडिविजुअल को, मतलब जिस पैथोजन से वो डिजीज होता है जिसके खिलाफ आप वैक्सीन दे रहे हो, उसका मतलब डेड पार्ट होगा वो, ठीक है? उसी वायरस का, उसी बैक्टीरिया का, उसी प्रोटोजोन का डेड पार्ट हो जिससे हमारी बॉडी में डिजीज ना हो, बट दैट पार्ट इज सफिशिएंट टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज, ठीक है? एंड आवर इम्यून सिस्टम हैव एबिलिटी टू कीप द मेमोरी। जैसे एक बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडी किसी के खिलाफ डेवलप हो गई, आवर इम्यून सिस्टम कीप्स मेमोरी ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? जब एक्चुअली कभी वो वायरस आ जाता है या बैक्टीरिया आ जाता है हमारी बॉडी में, तो ये जो क्या नाम है इसका, एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई है, वो उनको विद इन मिनट्स उसको डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। दिस इज द मतलब ये जो वैक्सीनेशन का फायदा है, ठीक है? तो वैक्सीनेशन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसको टीबी का वैक्सीन देते हैं। उसमें क्या देते हैं, एक डेड पैथोजन या कुछ ऐसा पार्ट होगा जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा इसके खिलाफ। फिर अगर लाइफ टाइम में एक्चुअली कभी वो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया तो ये उसको विद इन मिनट्स डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन बच्चों को कंटिन्यूअसली करवानी है, जैसे जैसे पोलियो के खिलाफ करवाते हैं, ठीक है? तो फिर वो डिजीज हमारी बॉडी में डेवलप होने का कोई चांस नहीं, ठीक है? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो राइट इन द कमेंट, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। एंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट इन द कमेंट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो।